Hello students, we are doing chapter topic investment multiplier from the topic determination of income, output and employment. बेसिक कंसेप्ट हम कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कर चुके हैं. अब हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और आउटपुट मल्टीप्लायर. क्या होता है, क्या वर्किंग है, बैकवर्ड फॉरवर्ड एक्शन प्रोसेस. नाउ वी आर डूइंग the relationship between multiplier and MPC, marginal propensity to consume. हमने पढ़ा है जब ज़्यादा खर्चा होता है तो ज़्यादा इनकम जनरेट होती है. यू स्पेंड मोर, यू अर्न मोर, सो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट वुड बी हायर. इसका मतलब मल्टीप्लायर और MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशन पॉजिटिव है. कैसे? लेट्स सी दैट. K is equal to, what is K? The multiplier, delta Y by delta I. Change in income to change in investment. That means जितनी इनकम बढ़ी है क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इस इन्वेस्टमेंट से जितनी इनकम बढ़ी है. The answer is in times, 4 times, 6 times, 7 times. It is also equal to 1 upon 1 minus MPC, or it is also equal to 1 upon MPS. मल्टीप्लायर MPC से ऐसे रिलेटेड है और MPS से ऐसे. माई क्वेश्चन इज वाई मल्टीप्लायर MPC से ऐसे रिलेटेड क्यों है? लेट्स प्रूव इट. K is equal to 1 upon 1 minus MPC. Left hand side, K, what is K? Delta Y upon delta I. Right hand side, 1 upon 1 minus MPC. What is MPC? Marginal propensity to consume. Change in consumption to change in income. Yes or no? Change in consumption to change in income. Taking LCM, what we get is 1 upon delta Y minus delta C upon delta Y. Delta Y upon delta Y minus delta C. हमें पता है Y minus C S होता है, इसके बाद यहाँ रहेगा. We know that Y minus C is S, therefore delta Y minus delta C is delta S. So what we get? Delta Y upon delta Y minus delta C is delta S. जैसे आपको कल बताया था मल्टीप्लायर इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही रहता है. एट इक्विलिब्रियम S is equal to I, therefore delta S is equal to delta I. So it would be delta Y by delta I. Hence proved the result. हम प्रूव कर रहे हैं K is equal to 1 upon 1 minus MPC. We are proving K is equal to 1 upon 1 minus MPC. Positive relation, higher the MPC, higher the multiplier. First we'll take the left hand side, K is equal to delta Y by delta A, then right hand side 1 upon 1 minus MPC. MPC is change in consumption to change in income. Taking LCM, Y minus C is S, so delta Y minus delta C is delta S. Delta Y by delta S, S is at equilibrium I, so delta S is equal to delta I. Thus left hand side is equal to right hand side. K is equal to delta Y by delta I. ऐसे ही this is the third result. K is equal to 1 upon MPS. That is the smaller one. K is equal to 1 upon MPS. Left hand side, K is equal to delta Y by delta I. Right hand side,
1 upon MPS. What is MPS? Marginal propensity to save. That means 1 upon delta S upon delta Y. That will go up. S is equal to I. Left hand side is equal to right hand side. Thus K is equal to 1 upon MPS, क्योंकि S I के इक्वल होता है और डेल्टा S डेल्टा I के इक्वल. सो मल्टीप्लायर के 3 फार्मूलाज मिल गए हमें. पहला जो मेन फार्मूला है, मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. आई रिपीट, मल्टीप्लायर रेफर्स टू चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. Unit is times. Then we have, it has positive relation with MPC, that is 1 upon 1 minus MPC, and an inverse relation with MPS, that means 1 upon MPS. Higher MPC, higher multiplier, and vice versa. Higher MPS, lower multiplier, vice versa. I'll give time to note this. आपको टाइम मिलेगा. पहले पेज नंबर 83 पर आते हैं. प्लीज ओपन पेज नंबर 83. Kindly open page 83. Relationship between MPC and MPS with K. K is equal to 1 upon 1 minus MPC, which is nothing but 1 upon MPS. Higher MPC implies higher multiplier. Thus, there is positive relation between MPC and K. Please underline positive. Kindly underline positive, which is direct. Higher MPS implies lower MPC implies lower multiplier. ज़्यादा MPS होगा तो multiplier कम हो जाएगा. Thus, negative relation between MPS and K. Please underline negative, indirect. Please underline negative, indirect. Clear? Proving मैंने कर दी है. पेज नंबर 83 के रफ पेज पर यहाँ पर आप ये प्रूविंग नोट डाउन कीजिए. फर्स्ट, K is equal to 1 upon 1 minus MPC, and after that K is equal to 1 upon MPS. Both the provings on a rough page in 2 to 2.5 minutes. Here you go. One minute gone. थर्टी सेकेंड्स मोर बच्चा, स्पीड अप. Right. So we got the 3 formulas.
K is equal to delta Y by delta I, that is change in income to change in investment, and K is 1 upon 1 minus MPC and K is 1 upon MPS. Now we are starting with the questions. Multiplier में हमारा है process, meaning working, process, forward and backward action and its relation. Normally इसके numerical exam में रहते हैं and majority of the questions are numerical only. Page 84, ये तीन फॉर्मूले ही यूज होने हैं. We'll do in a continuity way, one ascending 1 to 20. Question number 1. If MPC is equal to 1, the value of multiplier is. MPC 1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा K is equal to 1 upon 1 minus MPC, 1 upon 1 minus 1, MPC 1 है, 1 upon 0, infinity times. इसका मतलब है आप जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं. जब आप कमाएंगे और उतना खर्च करेंगे तो प्रोसीजर चलता ही रहेगा इन्फिनिटी टाइम्स. मल्टीप्लायर कभी ख़त्म नहीं होगा. यू विल स्पेंड मोर, यू विल सेव लेस, यू विल अर्न मोर. व्हेन आई से यू, आई मीन टू से इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू होती है 1 जब आप सारा कुछ सेव कर लेते हैं. MPC मिनिमम, मल्टीप्लायर मिनिमम, MPC मैक्सिमम, मल्टीप्लायर मैक्सिमम, क्योंकि MPC और मल्टीप्लायर का पॉजिटिव रिलेशन है. सो व्हेन MPC इज मिनिमम, K is minimum. Thus, K is minimum when MPC is 0. The minimum value of MPC is 0 and the maximum value of MPC is 1. So जब MPC 0 होगा तो K minimum आ जाएगा. कितना? K is equal to 1 upon 1 minus MPC, 1 upon 1 minus 0, 1 upon 1, 1 time और 1 times. गवर्नमेंट ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की उतनी ही इनकम हो जाएगी फॉर द फर्स्ट राउंड. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 3. What will be the value of K if investment implies 3 times rise in income? K कितना होगा if investment implies 3 times rise in income? चेंज इन इन्वेस्टमेंट को ले लेते हैं X, चेंज इन इनकम हो जाएगी 3 times 3x. क्वेश्चन में लिखा है आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इनकम 3 गुना हो जाएगी. तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? K is equal to delta Y by delta I, 3x by x, 3 times. Question 4. What will be the value of K if rise in investment implies 3 times more rise in income? अब ध्यान दीजिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर है. आई रियली वॉन्ट आप फोर्थ क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए. काइंडली रीड आउट द फोर्थ क्वेश्चन, स्पीड अप. आपने थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस देखा होगा, मोर वर्ड है एक. प्लीज अंडरलाइन फोर्थ में मोर. उन्होंने बोला है जितनी भी इनकम है इन्वेस्टमेंट है, इनकम 3 गुना से 1 ज़्यादा है. सो डेल्टा आई वुड बी x, डेल्टा y इज 3 times more than that. सी द डिफरेंस. इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज हो रही है, इनकम 3 times more than that, 3 गुना प्लस x. मोर का मतलब है उससे ज्यादा. यहाँ पे 3 times था, यहाँ 3 times more than that था. सो K वुड बी
delta y by delta I, that is 4x by x 4 times. मतलब अगर गवर्नमेंट 10 रुपये लाएगी तो इनकम 40 से बढ़ेगी, अगर गवर्नमेंट 10,000 डालेगी तो इन्वेस्टमेंट तो कंट्री की इनकम 40,000 हो जाएगी. अगर गवर्नमेंट 1 करोड़ की इंजेक्शन करेगी, 1 करोड़ की जीएसटी माफ़ कर दी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी लोगों की. टैक्स अगर माफ़ कर दिया या वट एवर, तो उसे 4 गुना ज़्यादा नेशनल इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोवाइडेड इकोनॉमी क्लोज्ड है, पैसा इंडिया में रह रहा है. क्वेश्चन नंबर 5. इफ MPC is equal to MPS, calculate K. MPC is equal to MPS. We know that, एग्जाम में पूरा लिखेंगे, MPC प्लस MPS is equal to 1. दोनों का समेशन 1 होता है. यूजिंग दैट इक्वेशन, MPS plus MPS is equal to 1, 2 MPS is equal to 1, MPS is equal to 1 by 2, 0.5. What is multiplier? Delta y by delta I नहीं लगेगा, 1 upon 1 minus MPC नहीं लगेगा, 1 upon MPS. टू टाइम्स. क्वेश्चन में गिवन था अगर MPC MPS के इक्वल हो तो मल्टीप्लायर क्या होगा. यू नो दैट MPC MPS के इक्वल है तो दोनों 0.5 के इक्वल ही आएंगे, 0.5. क्वेश्चन नंबर 6. इफ K is equal to 3, calculate MPC and MPS. K is equal to 3. K is equal to 1 upon MPS. 3 is equal to 1 upon MPS. MPS is equal to 1 by 3, 0.33. Obviously आप K is equal to 1 upon 1 minus MPC भी सॉल्व कर सकते थे, तो आपका आंसर MPC का 0.67 आ जाता. एक ही चीज़ है, दिस इज मैथ्स इन मर्जर विद इकोनॉमिक्स. फॉर्मूला और मार्क्स तभी मिलेंगे जब फॉर्मूला होगा और आंसर होगा. Now MPC plus MPS is equal to 1, MPC plus 0.33 is equal to 1, MPC is equal to 1 minus 0.33, MPC is equal to 0.67. So MPC is 0.67, MPS is 0.33. Question number 7th. Calculate K and the effect of increase in autonomous investment by 1000 crores. 7th का फर्स्ट पार्ट, पहले 7th में गिवन है autonomous investment by 1000 crores. Delta I is 1000 crores. इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से चेंज हो रही है तो मल्टीप्लायर निकालिए. और चेंज इन इनकम निकालिए. आपको चेंज इन इनकम और मल्टीप्लायर निकालना है. गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाई ड्यूरिंग सम इशू, ड्यूरिंग सम पीरियड, ड्यूरिंग सम पॉलिसी, फॉलोइंग द पॉलिसी. गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, कुछ नहीं गिवन तो प्लस फॉरवर्ड एक्शन. आप बताइए कंट्री की जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा और मल्टीप्लायर पे क्या इंपैक्ट रहेगा. फर्स्ट MPC is 0.60. MPC वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 upon 1 minus MPC, 1 upon 1 minus 0.60, 1 upon 0.40, 10 by 4 और 100 by 40, 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना. गवर्नमेंट जितनी भी इनकम इन्वेस्ट करेगी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगी, इनकम 2.5 गुना हो जाएगी, 2.5 टाइम्स. सो K is equal to delta Y by delta I.
2.5 is equal to delta y by delta I is 1000. $2500 करोड़। गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, और इनकम 2500 करोड़ से बढ़ जाएगी। फॉरवर्ड एक्शन। नंबर 2, MPC is equal to 0.75. Without any explanation I am solving on board, you may solve yourself, because बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ रहा है 4 टाइम्स एंड 4000 करोड़। आप देख सकते हैं जैसे जैसे एमपीसी बढ़ी मल्टीप्लायर बढ़ा है। एमपीसी 0.6 से 0.75 होगी, मींस पहले इकोनॉमी अगर 60% स्पेंड कर रही थी अब 75% स्पेंड कर रही है। तो आप देख सकते हैं पहले कंट्री की जीडीपी 2500 करोड़ से बढ़ रही थी, अब 4000 करोड़ से बढ़ रही है। राइट, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, what increase in investment is needed to raise the income by 1000 crores? 1000 करोड़ से कंट्री की इनकम को बढ़ाना है तो कुछ इंजेक्शन करनी पड़ेगी, स्टैंड्स फॉर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कितनी? आपने सुना भी होगा इकोनॉमिक टाइम्स में, न्यूज़ में, गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती रहती है मार्केट में बार बार। कभी जीएसटी कलेक्शन कम हो गई है तो लोगों की प्रोपेंसिटी पता है कम हो गई है तो टैक्स को कम कर देना, एंड XYZ, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स द गवर्नमेंट डज। तो इसी तरीके से आरबीआई और गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री में 1000 करोड़ से इनकम बढ़े, पर वो कैसे बढ़ेगी? अगर कुछ इन्वेस्टमेंट होगी। कितनी हो? लेट्स सी। What increase in investment is needed? Delta I is question mark. To raise the income by 1000 crores, delta y 1000 CR. If MPC is 0.75, so पहले जब भी क्वेश्चन में डेल्टा y और डेल्टा i आएगा, whenever question asks for delta y and delta i, that means मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगेगा। सो पहले मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाते हैं, k is equal to 1/1 minus MPC, 1/1 minus 0.75, 1/0.25, 100 by 25, 4 times. The multiplier is 4 times, 4 गुना, and k is technically delta y by delta I. 4 is equal to 1000 by delta I. Delta is 1000 by 4, 250 करोड़। अगर गवर्नमेंट 250 करोड़ से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी तो टेक्निकली कुछ nth राउंड के बाद 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ की इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 गुना, 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोवाइडेड द एमपीसी ऑफ द कंट्री इज 0.75,
Question number 9. Given MPC is 0.75, calculate delta Y, delta C, delta S. When investment increases by 2500 crores, investment increases by 2500 crores. जैसे आपको पहले बताया, आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, आंसर सेम आना चाहिए. आंसर सेम आ रहा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे. मैं पहले मल्टीप्लायर कंप्यूट कर रहा हूं. फोर टाइम्स मल्टीप्लायर आया हमारे पास 4 टाइम्स, 4 गुना. ऊपर सॉल्व करते हैं. K is equal to delta Y by delta I. 4 is equal to delta Y by 2500 crores. 4 into 2500 is delta Y. Rupee 10,000 crores is change in income. Change in income is 10,000 करोड़. 2500 करोड़ बन जाएगा 10,000 करोड़. उन्होंने पूछा डेल्टा सी एंड डेल्टा एस, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग. MPC is equal to change in consumption by change in income. जितनी इनकम चेंज होगी 0.75 उसकी कंजम्पशन चेंज होगी. MPC 0.75 is equal to delta C upon 10,000. इस कंट्री की 10,000 करोड़ से इनकम चेंज होगी तो 7500 करोड़ से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी. अगर गवर्नमेंट ने 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है तो उससे 10,000 की कंट्री की जीडीपी नेशनल इनकम बढ़ेगी और 7500 करोड़ की कंजम्पशन बढ़ेगी. मतलब मार्केट बहुत बड़ी बढ़ेगी. नेक्स्ट ईयर इंडिया की या इस कंट्री की मार्केट बढ़ेगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की. और उन्होंने पूछा डेल्टा एस, चेंज इन एस. डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस. वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस. जो कमाया वो खर्च किया या सेव किया, तो जो एक्स्ट्रा कमाया वो एक्स्ट्रा खर्च किया और एक्स्ट्रा सेव किया. डेल्टा y इज 10,000, डेल्टा सी इज 7,500, डेल्टा एस इज रुपी 2,500 करोड़. So your answers are delta y 10,000, delta C 7,500, delta S 2,500. Cool. इसको हम और भी डिफरेंट वे से निकाल सकते हैं. डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा आई, क्योंकि मल्टीप्लायर इक्विलिब्रियम पे ही रहता है तो एस इज इक्वल टू आई 2500 करोड़ ही आएगा. सो दैट कुड बी ऑल्सो रिटर्न एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर गेटिंग द आंसर 2,500 करोड़. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MPC? MPC कितना है? If an additional investment of 40 crores lead to an increase in income by 100 crores, 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की इनकम बन जाए. अगर इस कंट्री में 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की इनकम बन जाएगी तो लोगों का क्या बिहेव है एवरेज बेसिस पे खर्चा करने का.
k is equal to delta y by delta I, 100 by 40, 2.5 times. K is 2.5 times. K is actually 1 upon 1 minus MPC. 1 upon 1 minus MPC, क्योंकि मल्टीप्लायर तो 2.5 आ गया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2.5 1 minus MPC is equal to 1. 2.5 minus 2.5 MPC is equal to 1. 2.5 minus 1 is 2.5 MPC. I hope you are getting. 1.5 is 2.5 MPC. 1.5 by 2.5 is MPC. 3 by 5, 0.6 is MPC. 15 by 25 is 0.6, I guess. Right. Sometimes my calculations are also right. Sometimes. This is 10th question. जैसे मैंने पहले बताया, आप किसी और वे से भी कर सकते हैं. आपका आंसर सेम आना चाहिए, फॉर्मूला सही लिखा होना चाहिए. You will get the full credit for the answer. Question number 11. If the value of multiplier is 4, k is equal to 4, what will be the effect on total income if additional investment is 3000 crores? बताइए इनकम कितनी चेंज होगी अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ है. अगर इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ से बढ़ रही है तो इनकम में कितना चेंज आएगा अगर मल्टीप्लायर 4 है. सो बेसिकली k इज डेल्टा y बाय डेल्टा I. 4 is equal to delta y by 3000. 12,000. Income will rise by rupee 12,000 crores. 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ की इनकम बढ़ाएगी तो जाके मल्टीप्लायर 4 आएगा. क्वेश्चन नंबर 12. MPC इज 0. कंट्री का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है. मीन्स एवरीथिंग इज सेव्ड. वट एवर यू अर्न इज एक्चुअली सेव्ड. कैलकुलेट द चेंज इन इनकम. चेंज इन इनकम निकालिए. इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स बाय 1000 करोड़, इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से कम हो रही है, माइनस. और अगर आप माइनस नहीं भी डालेंगे तो लास्ट में आंसर में लिख देंगे कि वो डिक्रीज कर रही है, बिकॉज इट्स अ बैकवर्ड एक्शन. k is equal to 1 upon 1 minus MPC, 1 upon 1 minus 0, 1 upon 1, one time. Means one round, एक राउंड है, that's it. 1000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ी, कुछ खर्च नहीं किया, एक ही बंदे की इनकम बढ़ेगी. So k is equal to delta y by delta I. 1 is equal to delta y by 1000. 1 into 1000 is delta y. So delta y is basically 1000 crores or crore. Moving to question number 13th. There is an increase in investment of 100 crore in an economy. कंट्री में इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ रही है. ओके, यहाँ पर बैकवर्ड एक्शन है तो एक बार हम मेंशन कर देते हैं 12th क्वेश्चन में कि ये डिक्रीज कर रही है. इनकम विल फॉल बाय 1000 करोड़. फॉल, डिक्रीज, बैकवर्ड एक्शन की बात हो रही है. ओके, बैक टू 13th क्वेश्चन.
There is an increase in investment by 100 crores in an economy. If MPC is 0.75, what can you say about increase in income? K is equal to 1 upon 1 minus MPC, 1 upon 1 minus 0.75, 1 upon 25, 100 by 25, 4 times. And K is delta Y by delta I. 4 is equal to delta Y by 100 crores. Income will rise by rupee 400 crores. 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ की इनकम लेके आएगी. Speed up. Moving to the last question. No, 1, 2, 3, 4. Yeah, we'll take around 5 minutes. Question number 14th. Question number 14th. In an economy, 20% fall in investment, rise in 40% fall in income. Investment 20% है और इनकम 40% है. कैलकुलेट एमपीसी. एमपीसी कंप्यूट करना है. So K is equal to delta Y by delta I. 20% of what? The initial one. 40% of what? The initial one. जितनी इनकम है 40% पहले से कम होगी, जितनी इन्वेस्टमेंट है 20% पहले से कम होगी. So change in income is 40%, change in investment is 20%, which is 20 by 40 2 times. And K is technically 1 upon 1 minus MPC. 2 is equal to 1 upon 1 minus MPC. MPC आ जाएगा 0.5. Means 50% of income is saved and 50% of income is consumed. Okay, moving to question number 15th. Question number 15th. If C is equal to 200 plus 0.8y, C is equal to 200 plus 0.8y, find K. What is C? C bar plus by. C bar plus by. So this is B. We know that C is equal to C bar plus by. Therefore, B is equal to MPC is equal to 0.8. And what is K? 1 upon 1 minus MPC. Five times. Question में बोला है find K, which is nothing but 5 times. Question 16th. This is our last question. What is the range, maximum and minimum value of K? This is our last question. What is the range, minimum and maximum value of K? Maximum value of K happens when MPC is maximum. मल्टीप्लायर तब मैक्सिमम होता है जब MPC मैक्सिमम हो. Thus, K is maximum when MPC is equal to 1. K maximum होता है जब MPC 1 के इक्वल होता है.
k is equal to 1 upon 1 minus mpc, 1 upon 1 minus 1, 1 upon 0 infinity times. So minimum value of k is 1 time and maximum value of k is infinity times. अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे ये मिनिमम वैल्यू कहाँ से आई है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आज ही किया, इसी लेक्चर में किया है। रेफर क्वेश्चन नंबर 2। मिनिमम वैल्यू हम 2 में निकाल चुके हैं, मैक्सिमम मैंने अब करवा दिया। We are left with 4 questions and tomorrow in lecture number 14th we'll be doing that. Bye bye, take care, God bless.